ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر سکیتا تیسرا کو غور سے ہاللویا. Thank you very much, Mariam. مسیح میں سب کو سلام. ہم سب یہاں جو آئے ہیں خوش ہیں؟ زور سے آواز نہیں آئے. تو ہم یہاں کس کے لیے آئے ہیں؟ یسوع کے لیے. ہر ایک زندگی جو یہاں موجود ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ غور سے سنیں کہ وہ یسوع کے لیے آئی ہے. اور یہ کلام جو ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ پاک روح کے ذریعے آپ کے دلوں تک پہنچے گا. کیونکہ مجھ میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں, ایسی قابلیت نہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے کلام پیش کروں. مجھ سے اچھے بہت اچھے خادم ہیں جو مجھ سے بہت اچھا کلام پیش کرتے ہیں, کلام مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, ان کی خدمت مجھ سے بہت زیادہ ہے. اور میں اپنا آپ کو اس وقت ایک ذرے کی مانند محسوس کرتی ہوں. لیکن کلام مجھے دلیری دیتا ہے اور اس سے بڑھ کے پاک روح مجھے دلیری دیتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب تو اپنے لب کھولے گا تو میں اسے بھر دوں گا. لیکن اس بھرنے میں کچھ ٹائم لگا. ہو سکتا ہے کسی اور کے بھرنے میں کم ٹائم لگے, لیکن میرے اس پیالے کو بھر کے لبریز ہونے میں کچھ ٹائم لگا. اور وہ ٹائم ہے 33 سال. 33 سال. اور اس وقت میں وہ لمحہ یاد کرنا چاہوں گی کہ جس وقت میں نے خدا یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کیا. میں بہت چھوٹی تھی اور یہ میں 91 کی بات کر رہی ہوں. یہی اپریل کا مہینہ تھا, 17 تاریخ, جب بردر ملٹن نے مجھے یہ پیغام دیا کہ نئی پیدائش ہونا لازمی ہے. نئی پیدائش اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو آج وہ بے شک پیچھے بیٹھے ہیں لیکن یہ پودا ان نے لگایا تھا, تو ان کے لیے تالیاں. تو ہمیں اپنے استاد کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور میں ان کو کبھی نہیں بھولی. ان سے میرا کانٹیکٹ ریگولر نہیں رہا لیکن وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. استاد کو ہمیشہ دل کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں سکھاتا ہے. اور اگر ہم اس سے سیکھیں اور سیکھ کے پھر بڑے ہو کے دوسروں کو سکھانے والے بنے تو پھر مسیح ہم سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی پودا لگایا تھا کسی نے اور آج وہ کھڑا ہے کچھ اور پودے لگانے کے لیے. کیونکہ ہم سب مختلف جگہ پہ ہیں اور مختلف لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. میں کسی کو ریچ کر پاتی ہوں, کوئی اور کسی اور تک پہنچ پاتا ہے. اگر ہم سب سمجھیں کہ ہم تو سب کو کلام سنا سکتے ہیں اور ہمارے وسیلے سے سب کام ہو سکتے ہیں تو یہ ہماری عقلی ناسمجھی ہے. اسی لیے خداوند یسوع جو کہ خداوند تھا وہ تخت چھوڑ کے آیا اس جسم میں. کیا وہ اکیلے کام نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اس نے شاگرد بنائے. کیوں بنائے؟ کیا وہ اکیلے کوئی معجزہ نہیں کر سکتا تھا؟ وہ سب کچھ کر سکتا تھا کیونکہ وہ خدا تھا. اس جسم میں وہ چلتا پھرتا ہمارے بیچ اٹھتا بیٹھتا کھاتا, وہ خداوند خدا تھا. لیکن اس نے یہ ایک ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کی کہ جب میں نہیں کچھ کر رہا اکیلے تو تم بھی اکیلے نہیں کر سکتے. تو ہمیں بھی لوگ چاہیے. اگر آج میں کہوں کہ مجھے کوئی یہاں سے پرستش کے لیے نہیں چاہیے, مجھے کوئی اور یہاں ہوسٹنگ کے لیے نہیں چاہیے, مجھے دعاؤں کے لیے کوئی نہیں چاہیے, تو میں خداوند کے کلام سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں گی.
क्योंकि मैं अपना प्रचार कर रही होंगी, यानी मैं, और जब मैं आती है तो यीशु चला जाता है, यीशु चला जाता है। इस मैं को मारने के लिए यीशु आया, इस मैं को मारने के लिए यीशु आया। और जब तक हम मैं को नहीं मारते, यीशु हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आज मैं इन सब ये जो हमारे बहनें, माँ, बेटियां बैठी हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और पीछे कुछ मेरे भाई भी हैं, लेकिन ज्यादा तादाद मुझे बहनों की नजर आ रही है। इस वक्त ये कलाम आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? भाइयों के लिए भी है, लेकिन परवरिश कौन करता है बच्चों की? हर वक्त गोद में सिखाता कौन है? माएं। किसी ने कहा है कि मुझे एक माँ दो, अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंस है एक खातून की, एक माँ की, एक बेटी की, क्योंकि उसने बड़े होना है। और आपके लिए कलाम ज्यादा जरूरी है, भाइयों के लिए भी है। तो इसलिए खुदावंद को ये अच्छा लगा कि मैं आज आपके दरमियान आऊं। इसमें मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। और साला जलाल हमारे खुदावंद खुदा यहोवा पाक का हो, जिसने ये इंतजाम किया। उसी ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यशुआ, यस्सु जिसको हम कहते हैं, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और हलाक ना हो। और आज का उन्वान है आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही। आसमान तो आप सब जानते हैं, आसमान है ये, और हम इस वक्त जमीन में हैं। और बादशाही क्या है? बादशाही क्या है? मैं इंग्लैंड से आई हूं और वहां पे बादशाही चलती है, किंगडम। इसका मतलब है कि वहां तख्त है जिसपे एक बादशाह बैठा है। पहले मलका बैठी थी उस तख्त पे, अब उसका बेटा बैठा है। वो जब तक नशी उसको किया गया तो उसके पास सारी अथॉरिटी जो उसकी माँ जो मलका थी उसके पास, वो उस बेटे की हो गई, क्योंकि वो तख्त नशी हो गया। अब जब वो तख्त पे बैठा है तो वो उसको सिर्फ ऑर्डर करने की देर है। जब वो ऑर्डर करेगा तो क्या काम होंगे या नहीं होंगे? उसको कुछ खुद करने की जरूरत है नहीं है। तो ये खुदावन की बादशाही जो है, जब वो इंसान होने के नाते जब ऑर्डर करता है और उसका हर काम होता है बादशाह होने के नाते, तो क्या ही बड़ा हमारा अजीम यहोवा पाक खुदावन है जो अपने तख्त पे वहां बैठा है। वो तख्त नशीन है, वो तख्त नशीन है। क्या वो हर वक्त तख्त नशीन है? कलाम से देखते हैं कि कलाम क्या कहता है। और ये कलाम की वो आयत है जो मुझे मेरी मिनिस्ट्री के लिए मिली, जिसका नाम है स्टार्स ऑफ डेविड। और कोई बहन या भाई पढ़ेंगे जबूर 22 उसकी 3री आयत। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, पढ़ती मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इस्राएल के हमदो सना पर तख्त नशी है, आमीन आमीन। किस पे तख्त नशी होता है खुदावन? हमदो सना पे। इसीलिए कोई भी इबादत हमदो सना के बगैर अधूरी रहती है। ये हम जो खुदाम यीशु के नाम से पहचाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं, हम जब तक सना ना करें, तारीफ ना करें, ताजीम ना करें, उसके लिए तख्त ना बिछाएं, वो तख्त नशी नहीं होता, ये कलाम कहता है। और मेरी मिनिस्ट्री परस्तिश, सताइश, ताजीम इसके लिए बनाई गई है। और खुदावन ने ये कलाम करके मुझे कहा कि जब परस्तिश होगी तो मैं तख्त नशी होगा, और फिर
भाकरू जुम्बिश करेगा और काम होंगे। हम यीशु का नाम लेंगे और काम होंगे। हालेलुया। तो काम किसके नाम पे होने हैं? यीशु के नाम पे काम होने हैं। तो अभी हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। पढ़ती हूँ खुदावंद के नाम से। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आमीन आमीन। ये आयत जो है आज से 2000 साल पहले लिखी गई। उसमें लिखा है कि खुदावन की बादशाही नजदीक है। और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये तो खुदावन की बादशाही, तो ये तो 2000 साल से हम सुनते आ रहे हैं, नजदीक है नजदीक है नजदीक है। तो उस वक्त भी नजदीक थी बादशाही, आज भी नजदीक है, क्योंकि खुदावन खुदा हमारे दिलों पे हुकूमत करना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमारे दिलों पे तख्त नशीन हो। क्या हमने उसे इस दिल का वो तख्त दिया है कि वो उस पे तख्त नशीन हो? ये हर एक को जांचने की जरूरत है। हर एक शख्स अपने आप को खुद जांचे कि क्या आपने दिल खुदावन के सामने पेश किया कि खुदावन इस पे यीशु हर वक्त हुकूमत करे। मैं आपको नहीं कह सकती, मैं किसी को भी नहीं कह सकती, मैं सिर्फ अपने लिए कह सकती हूँ कि मैंने ये तख्त खुदावन खुदा के हजूर नजर गुजरान लिया है। और अब मैं कहती हूँ मैं घटूं और वो बढ़े, यहाँ तक कि मुझ में सिर्फ यीशु ही दिखाई दे, यीशु ही नजर आए, यीशु मेरे चाल चलन में, यीशु मेरी बातचीत में, यीशु मेरे उठने में, यीशु मेरे बोलने में। और बहुत सी जिंदगियां यीशु को मेरे चाल चलन, मेरी जिंदगी के वसीले जाने। बहुत से ऐसे हैं जो कलाम नहीं पढ़ते और ना पढ़ेंगे, लेकिन वो हम जो चलती फिरती बाइबल्स हैं वो हमें देखते हैं। क्या हम यीशु को रिफ्लेक्ट करते हैं? जैसे कि आईने में हमें अपना आप नजर आता है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें कोई और नजर आता है? नहीं, हमें अपना चेहरा नजर आता है। लेकिन क्या ये अजीम बात हो अगर हम महफिल में जाएं और लोगों को हम लोगों से सुने कि इसमें यीशु नजर आता है। हालेलुया। तो हमें एक ऐसे अपने दिल को एक ऐसे शीशे की मानंद शफाफ करना है कि जिसमें दूसरों को सिर्फ यीशु नजर आए। और बादशाही बिल्कुल उस वक्त भी करीब थी और आज भी करीब है, 2000 साल गुजरने के बाद भी, क्योंकि वो बादशाह अपने तख्त पे तख्त नशीन होता है हमारी सना पे। वो पहले भी होता था, आज भी होता है, और जब हम उठाए जाएंगे तो क्या होगा? परस्तिश होगी। ऊपर क्या होगा? परस्तिश होगी। क्या कोई नौकरी करेगा? क्या कोई अपने कामों में उलझा रहेगा कि परस्तिश ना कर सके? परस्तिश होगी और परस्तिश पे खुदावन अपना तख्त पे बैठेगा। और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी तारीफ करें, उसकी सना गाएं, उसकी परस्तिश करें। जितनी परस्तिश हो उतनी ही खुदावन मामूली से काम करता है दिलों में। इसलिए क्योंकि आप में से ऐसा कौन सा शख्स है जो ये कहे कि मेरी तारीफ होती है और मुझे बुरा लगता है? बच्चों को देखें, अगर बच्चे कपड़े पहन के आते हैं, आप उनकी तारीफ करें तो वो खुश हो जाते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूं, मैं अच्छी लग रही हूं। तो कौन है जिसको अगर मैं कहूं, उसके खिलाफ कोई बात करूं तो वो खुश होगा? और हमें खुदावन ने अपने इमेज में अपनी तरह बनाया है। इसका मतलब ये है कि हम खुदावन खुदा जो हमें नजर नहीं आता वो हम जैसा है।
اور ہم اسے وہ پرستش اور وہ تعریف اور تمجید کا مقام نہیں دیتے جو اس کے لیے ضروری ہے، جس کے لیے وہ ہمیشہ سے سرگرداں ہے کہ مجھ سے مانگو، میری تعریف کرو، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ لیکن ہمیں کیوں نہیں ملتی چیزیں؟ ہم مانگتے ہیں اور مانگتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں چیزیں نہیں ملتی، کیونکہ دو طرح کی چیزیں ہیں، جسمانی چیزیں، روحانی چیزیں۔ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہم روحانی کو پیچھے رکھ کے جسمانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر کیا ہمیں وہ چیزیں ملیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع ہمیں وہ روحانی مقام دینے کے لیے آیا جو ہم کھو چکے تھے، جو آدم اور حوا کے پاس تھا، لیکن جب ان کی زندگی میں گناہ آیا تو وہ مقام ان سے چھن گیا، اور وہی مقام ہمیں خداوند واپس دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس برتن کو دھونے کی ضرورت ہے۔ کون کتنا دھوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے، یہ آپ پہ منحصر ہے، کیونکہ آپ نے اپنا برتن خود دھونا ہے۔ آپ کے لیے کوئی آپ کا برتن نہیں دھو سکتا۔ میں اپنے ہسبینڈ کا برتن نہیں دھو سکتی، وہ میرے برتن نہیں دھو سکتے، آپ کی امی ڈیڈی کوئی بھی آپ کا برتن نہیں دھو سکتا، کیونکہ جب ہم خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اکیلے ہوں گے اور وہاں پہ ساتھ یسوع ہوگا۔ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو دھو سکتے ہیں، تو دھونا آپ نے خود ہے، دھونا آپ نے خود ہے۔ اور دھلائی کیسی ہوتی ہے؟ کلام سے ہوتی ہے، کلام سے دھلائی ہوتی ہے۔ جتنا آپ کلام پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کریں گے، آپ کی دھلائی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کلام پڑھیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو کلام میں لکھا ہے پھر ایسے ہی ہے کہ ہم نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، ہم بھول گئے تھوڑی دیر کے بعد کہ ہمارا چہرہ کیسا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو وہ برتن بنے جو کہ خدا استعمال کرنا چاہتا ہے، بادشاہی میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہی میں صرف وہ برتن آ سکیں گے جو کہ خدا یسوع کے لہو سے دھل کے پاک صاف کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ اس دنیا میں بہت خدا ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس دنیا میں بہت خدا ہیں، بہت خدا ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، لیکن ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم خدا یہوہ پاک جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خداوند ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنی بنائی ہوئی کریشن آدم اور حوا کو اتنا پیار کرتا تھا کہ اس کو یہ اچھا لگا کہ میں ان کو اپنی پریزنس سے، اپنی موجودگی سے دور کر دوں، نہیں تو یہ میرے جلال سے ہی مر جائیں گے، یہ ناپاک ہو چکے ہیں، ہم سب ناپاک ہو گئے ہیں، اور جب تک ہم دھل کے خدا یسوع کے خون سے پاک نہ کیے جائیں، ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور خداوند کی بادشاہی کیسی ہے اور کون داخل ہو سکتا ہے؟ کلام کہتا ہے خداوند کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ کیسوں کی ہے؟ بچوں کے لیے۔ بچے ہر چیز جو آپ بچوں کو کہتے ہیں وہ یقین رکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ سوال نہیں کرتے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی عقل اپنی سمجھ آتی ہے تو وہ سوالات شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ اگر ان کو کل کہیں بچوں کو کہ میں آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول ہوائی جہاز لا کے دوں گا، ان کے دماغ میں یہ نہیں آئے گا کہ ممی ڈیڈی کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ سوچنے شروع جائیں گے کہ کل ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول پلین ہوگا۔ ایسے ہی ہے، کوئی آپ سے بچہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ آپ گفٹ لے سکتے ہیں یا نہیں، تو
ऐसा ईमान चाहता है हमारा खुदावन बच्चों जैसा कि जब तुम मुझसे मांगते हो तो ये जान लो कि मुझे मिल गया तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या हम वो ईमान रखते हैं? खुदावन ने मुझे वो ईमान दिया है कि मेरी कोई जरूरत खुदा के फजल से ऐसी कोई जरूरत नहीं जो पूरी ना वो करता हो, क्योंकि मैंने हमेशा रूहानी चीजों के पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन दुनियावी चीजों को भी पकड़े रखा, और इसलिए 33 साल लग गए इस दौड़ में। हो सकता है आपके बर्तन मुझसे ज्यादा साफ हों और आपको कम टाइम लगे, तो ये आप पे मुनसर है कि आप कितने ज्यादा कलाम को रोज पढ़ते हैं और उसे इतना पाक करते हैं कि खुदावन का रूह उसमें आके बसे और कहे, जब आप में से वो हो के बोले कि हो जा तो वो हो जाए, क्योंकि यही होता था जब यीशु यहाँ चलता था। उसके अंदर वो ही रूह था जो आज भी आपके और मेरे लिए खुदावन हमें देने के लिए कसरत से सरगर्दा है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगियों में पाक रूह आए और आप उसके लिए काम करें, उसके लिए काम करें। ये नहीं कि कल आप यहाँ पे आके खड़े होके इबादत देना शुरू कर दें। आपने कुछ ना कुछ करना है, जैसे भाई ने मेरे कहा कि यीशु के लिए कुछ ना कुछ करना है। हो सकता है आपकी खिदमत सिर्फ एक वाइफ की, एक बच्चों को घर हाउस वाइफ की और बच्चों को बड़े करने की है। अगर आपको मैं कहूँ कि जी सब कुछ छोड़ दो और इधर आ जाओ, तो वो मेरी नाअक्ली है। आप कितनी अच्छे से ये ड्यूटी निभाती हैं, उसके मुआफिक खुदावन आपको बरकत देगा। और खुदावन से पूछे कि खुदावन तो मुझसे क्या काम लेना चाहता है। खुदावन की बादशाही के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, तो मुझसे क्या काम लेना चाहता है। वो बोलेगा, वो बोलता है, हमारा खुदावन बोलता है। वो हम ही हैं जो हमारे कान जो है वो उसकी आवाज को नहीं सुनते, क्योंकि लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि तुम मत तक ना पहुंच पाए, और मेरे कान सुनते हैं, लेकिन तुम्हारे गुनाहों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। क्या हम गुनाह को छोड़ के खुदा के पास आना चाहते हैं? हम में से कौन सा है जो ये चाहता है? मुझे पता चला है कि बहुत से नौजवान बच्चे कुछ ऐसी आदतों में पड़ गए हैं जो कि अपने माँ बाप के लिए बहुत ही गम का बाइस हैं, और हमारे खुदा के लिए उससे ज्यादा गम का बाइस, क्योंकि माँ के लिए एक बच्चा जो गलत राह पे चलता है उसके लिए दुख का बाइस होता है। उसने तो पूरी दुनिया बनाई, सोचे कितना वो दुखी होगा अपने बच्चों को देख के जो गुनाह में है, कितना वो दुखी होगा। एक माँ अपने एक बच्चे का दुख सह नहीं पाती, वो तो हमारा बाप है, वो माँ है, उसने हमें पैदा किया, क्या वो दुखी नहीं? वो कितना दुखी होगा। 6000 साल वो सब्र करके बैठा कि मेरे लोग मेरी बनाई हुई चीज मुझे प्यार करे, मुझे जाने, मुझे अफजल माने, और हम उसे अफजल होने ही नहीं देते, हम उसे पहला दर्जा ही नहीं देते। हम हमेशा अपने आप को पहला दर्जा देते हैं, लिहाजा बादशाही पीछे रह जाती है और हम इस जमीन पे बादशाही करते रहते हैं। कोई अपने घर में, कोई अपने ऑफिस में, कोई अस्पताल में, जो जहाँ जिसकी अथॉरिटी है वो वहाँ हुकूमत करता रहता है, अपनी बादशाही बनाता रहता है, अपने लिए तारीफ इकट्ठी करता रहता है, और जो तारीफ के लायक है उसकी तारीफ नहीं करता, क्योंकि आज अगर वो चाहे तो ये सब कुछ मुझसे ले ले और कल मैं खाली बर्तन आपके सामने कुछ भी बोल नहीं सकूंगी, कुछ भी बोल नहीं सकूंगी। अगर मैं बोल रही हूं तो वो सिर्फ
पाक रूह की वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे चुन लिया। तो कलाम में जैसे हम आए हमारे बाप पढ़ते हैं, अपने बच्चों को आए हमारे बाप सिखाएं और रोज सोने से पहले उनसे सुने। मेरी मदर बहुत ज़्यादा मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे इब्तिदाई तालीम दी। आज जो मैं यहाँ पे हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी माँ का है। और जैसे कि आप भाई भी मेरे देखते हैं, वो भी अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं मैनुअल फेलोशिप के नाम से, और मैं अपनी स्टार्स ऑफ डेविड, स्टार्स यानी वो सितारे जो चमकते हैं, और मेरी क्वायर लंदन में है, और अभी मैं पाकिस्तान में भी हर शहर में एक क्वायर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने तो तख्त बिछाना है खुदावन के लिए, मैंने तख्त बचाना है। और जो अपने दिल पाक करके उसको नजर गुजरानते हैं और उसके सामने अपने आवाज़ों का हदिया देना चाहते हैं, वो सब वेलकम है। तो ये मेरी मदर जिन्होंने हमको परवरिश दी बचपन से, खुदावन यीशु, मेरी माँ के मन में वो 83 इयर्स की थी जब खुदावन के पास चली गई, सो गई वो, और उनके आखिरी दम था यही था, बेटा दुनिया तुमको अगर छोड़ दे, छोड़ सकती है, यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जैसे कि हम गाते हैं, यीशु क्या ही दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है। वो हमारा हर दुख बोझ उठाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम उसे अपना बोझ दें। हम तो उसे अपना बोझ नहीं देते, हम खुद सारे बोझ लेके चलते रहते हैं और कहते हैं मैं ये खुद ही कर सकता हूँ। और जब हम कहते हैं कि मैं खुद कर सकता हूँ, तो फिर क्या होता है, हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते, क्योंकि यीशु तो आपके पास ही है। वो दरवाजे पे खटखटाता है, वो अंदर भी आ जाता है, लेकिन वो बैठा रहता है, क्योंकि उसे दावत नहीं मिलती आपकी जिंदगी में काम करने की। आज मैं चाहूंगी इबादत के इख्तिताम में कि जब दावत दी जाए तो इस दावत को खुदावन की दावत समझें। हमें नहीं पता कि कल हम इस दुनिया में होंगे या नहीं। कौन ये 100% पूरी ईमान के साथ कह सकता है कि कल मैंने जिंदा होना है? कोई नहीं कह सकता। मेरी अपने क्लास फेलोज हैं, उनकी बच्चों की अभी एक बच्चे की डेथ हुई है 21 साल की रोड एक्सीडेंट में। खुदावंद आप सबके बच्चों को अपने अमान में रखे, अपने परों के साए तले रखे। लेकिन क्या वो खुदावंद के परों के साए तले हैं, या वो दुनियावी कामों में मसरूफ है और वो रूहानियत से बहुत दूर है? अगर वो बहुत दूर है तो फिर क्या फरिश्ते उसके चौगिर्द हर वक्त उसके आने, उसके जाने में उसके साथ होते हैं? आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि क्या चीजें जो हैं हमें बादशाही की तरफ लेके जाती हैं और क्या चीजें हमें बादशाही से निकाल देती हैं। हम लूका की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत। लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 20वीं आयत। जब फरीसियों ने, कलाम में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया। तो आज हम खुदा की बादशाही के बारे में सुन रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा कि वो नजर नहीं आएगी। ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं होगी कि ये खुदा की बादशाही और इसके अंदर दाखिल हो जाएं तो हम खुदा की बादशाही में शामिल हो गए। एक दफा फिर पढ़िएगा। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा
کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ کیونکہ دیکھو خداون کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ وہ 2000 سال پہلے بھی تھی، وہ آج بھی ہے، اور وہ تب تک ہوگی جب تک خداون یسوع نہ آ جائے، دوسری آمد نہ ہو اور ہم یہاں سے اٹھا لیے جائیں، اور پھر ہم اس کی بادشاہی میں، وہ بادشاہی جو ہمیں روحانی آنکھوں سے نظر آئے گی، وہ ہم اس میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ بادشاہی جس کا ذکر کلام میں ہے کہ تمہارے درمیان ہے، وہ بادشاہی وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع ہمارے کدھر کھٹکھٹاتا ہے؟ دل کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اور اگر یسوع دل کے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ مانگتا ہے کہ وہ اندر آئے اور ساتھ کھانا کھائے۔ کیا وہ یسوع ایکچوئل میں آپ کے ساتھ آ کے کھانا کھاتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ کھانے کا مطلب ہے میل ملاپ یا گانگت۔ فیملی سب ساتھ مل کے کھانا کھاتی ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کھانے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ روحانی کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب یسوع آپ دروازہ کھولیں گے، اور اس دل کے دروازے کا جو کنڈی ہے وہ اندر ہے، آپ نے کھولنی ہے، اور جب وہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ اندر، جب آپ کھولیں گے وہ اندر آئے گا تو آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ وہ کون سا کھانا کھائے گا؟ وہ بریانی پلاؤ نہیں کھائے گا، وہ روحانی خوراک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ روحانی خوراک اس کے ساتھ کھا سکیں؟ اور کیا آپ کے دل پاک ہیں کہ اس میں یسوع بیٹھ سکے؟ کیونکہ دیکھیں، گھر اگر گندا ہے، ناپاک ہے، تو کیا ہم جب کوئی مہمان کو بلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم صفائی کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، مہمان آ رہا ہے، گھر صاف ہونا چاہیے۔ اگر پورا گھر بھی صاف نہیں ہے تو ایک بیٹھنے والی جگہ صاف ہونی چاہیے۔ تو ہمارے دل کے اندر جہاں یسوع کو ہم بٹھانا چاہتے ہیں، کیا وہ پاک ہے؟ کیا وہ پاک ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز اس دل کو ناپاک کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 9 اور 10 آیت۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب 9 اور 10 آیت۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ ہاں جی، ایک دفعہ پھر پڑھیے، ذرا آہستہ آہستہ پڑھیے، اور یہ سب دیکھیں، یہ سب سنیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، خدا ان کا کلام کہہ رہا ہے کہ کون لوگ اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ کن کے دلوں میں یسوع آ کے سکونت نہیں کر سکتا۔ ایک اوپر تو ہمیں جو ملے گی ہمیشہ کی زندگی، یا ہمیشہ کی آگ میں، یا خدا یسوع کے ساتھ ایک زندگی ہم یہاں نیچے گزار رہے ہیں، یہ ہم کس کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس کا حساب کتاب بھی پہلے ہمیں یہاں دینا ہوگا، پھر ہمارے اوپر کی ٹکٹ لگے گی۔ تو کیا ہم یہ زندگی جو نیچے گزار رہے ہیں، اس میں ہم یسوع کے لیے دروازہ اگر کھول رہے ہیں تو کس قسم کا اسے ہم کمرہ دے رہے ہیں بیٹھنے کے لیے؟ پاک کہ ناپاک؟ کیا ناپاک جگہ پہ یسوع بیٹھے گا؟ یسوع تو آ جائے گا، کیونکہ وہ گنہگاروں کے لیے آیا ہے۔ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔
क्योंकि वो जिनाकार को उसने कहा कि जो पहला पत्थर है वो इसको मारे, तो वो जरूर आएगा। अगर वो खटखटाएगा, अंदर से गंदगी है, वो आएगा। लेकिन वो जब अंदर आए तो आपका क्या काम है कि आप सफाई शुरू करें। और सफाई होती है कलाम पढ़ने से। रोज कलाम पढ़ें और उस पे अमल करें, और आपका दिल साफ से शफाफ तर होता जाएगा। जब इतना शफाफ होगा कि यीशु फिर जब रूहानी खुराक आपसे शेयर करेगा तो फिर एक अंग्रेजी बोलने वाली खादमा भी उर्दू में कलाम पेश कर सकेगी, और वो सिर्फ पाक रूह की वजह से हो पाएगा। तो सारा जलाल खुदा को मिले, क्योंकि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, और उसके पे ईमान लाने से हम जो नापाक थे, हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वो ये बोल सके कि मैं पाक हूँ। क्योंकि कलाम कहता है कि हमारी जो रास्तबाजी है वो किसकी मानंद है? गंदी धज्जियों की मानंद है। हम जितने भी पाकीज़ा हो जाएं, अगर हम यीशु को नहीं जानते तो फिर हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। हम में से ऐसा कौन सा है जो खुदा तक पहुंचना चाहता है? और वो जगह जो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लिखा है कि हमारी आँख ने ना देखी, ना हमारी जो सोच समझ है उसमें हम ये इमेजिन कर सकते हैं, ख्वाब में भी देख सकते हैं कि वो कैसी जगह है। ऐसी जगह खुदा यीशु तैयार कर रहा है। तो उस जगह पे कौन जाना चाहता है? बाकी कोई नहीं जाना चाहता। मुझे तो कोई हाथ ही बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये मुझे हाथ नजर आने चाहिए। इसका मतलब है कि जो जिसके हाथ नीचे है वो नहीं जाना चाहता। कौन यहाँ पे नहीं जाना चाहता? हाथ खड़ा करें। इसमें कोई इम्तिहान नहीं हो रहा, ये दिलेरी है। ये ऊपर खुदावंद देख रहा है, एक दूसरे को भी ना देखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, उसको जानने की, उसको समझने की, उसको अपनाने की, उसको अपने दिल में लाने की, ताकि वो आए, वो बैठे, और आपको उसकी मौजूदगी का जब एहसास हो तो आप सफाई शुरू करें, कलाम पढ़ें, कलाम पे चले, कलाम खाएं, कलाम बोले, और फिर पाकीज़गी ही पाकीज़गी होगी दिल में। और कलाम में क्या लिखा है कि कौन खुदा को देखेगा? आपको पता है कौन खुदा को देखेगा? पाक दिल खुदा को देखेंगे, नापाक दिल नहीं देखेंगे। तो जिनकी बादशाही में तख्त पे यीशु तख्त नशीन है, वो ही पाक होंगे और वो ही खुदा को देखेंगे। तो जब ये मुझे एहसास हुआ तो मैंने धुलाई शुरू की। और कलाम तो मैं पढ़ती थी, मैं बचपन से पढ़ती हूँ। मेरी मदर मुझे कलाम के लिए कहती थी, दुआ करने को कहती थी। लेकिन सफाई का अमल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सफाई में आपको दो चीजें होती हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो कौल है, वो अल्फाज हैं जो माने रखते हैं बेशक। दूसरा है हमारा अमल, हमारा चाल चलन। हम अगर बोल रहे हैं जो, क्या हम अपनी जिंदगी में वो फॉलो करते हैं या नहीं? क्या अमली तौर पे हम वो बातें करते हैं जो हम कहते हैं? अगर हमारे कौल और फेल एक नहीं, तो फिर उस जिंदगी में यीशु का खुदावंद का जलाल नहीं जाहिर हो सकता। उस जिंदगी से यीशु की खुशबू नहीं आ सकती, और जिसकी जिंदगी में यीशु की खुशबू नहीं आ सकती, उसमें पाक रूह काम नहीं कर सकता। तो हम आगे और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो नापाक करती हैं। गलतियों की किताब, गलतियों का खत, उसके 5 बाब, उसकी 19वीं से 22वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में लिखा है,
اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانی، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آمین۔ یہ خداوند کا کلام ہے اور اس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ کیا چیزیں خداوند کو پسند نہیں ہیں اور کیا چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو خداوند ہماری زندگی میں کام نہیں کر سکتا۔ جب خداوند یسوع دروازہ کھٹکھٹائے اور ہم ناپاکی میں ہوں، وہ اندر آ جائے، وہ اندر آ جائے گا، کیونکہ اس کا کام ہے صفائی کرنا۔ ہر گنہگار کو وہ پاک کرنے آیا ہے۔ اگر ہم پاک ہی ہیں تو وہ پاک چیز کو تو پاک نہیں کر سکتا۔ جو چیز پاک ہے اس کو کیا کوئی پاک کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ جو چیز پاک ہوتی ہے، جو چیز ناپاک ہوتی ہے، پاک اس کو کیا جاتا ہے۔ نہیں سکتا۔ ایک سفید کپڑا ہے، اس کو ہم جو کہ ابھی خریدا گیا ہے، کیا ہم اس کو دھو کے صاف کرتے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو ہوتا ہی صاف ہے۔ لیکن جب ایک کپڑا گندا ہو جاتا ہے تب اس کو صاف کیا جاتا ہے، جب اس کو دھویا جاتا ہے۔ تو یسوع ہماری زندگیوں میں ہمیں پاک کرنے آیا۔ ایک دفعہ پھر یہ حوالہ میں سنیں گے اور ایک آہستہ پڑھیے گا تاکہ سب یہ سنیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ناپاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یسوع کو وہ کھٹکھٹا رہا ہے، اگر وہ جب وہ اندر آتا ہے اور آپ دھلائی شروع کریں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جادوگری، نشہ، زنا، جھوٹ اور بہت سی اس میں جو ابھی ہم سنیں گے کلام میں، یہ جب چیزیں آپ چھوڑتے جائیں اور یہ خود بخود چھوٹیں گی۔ جب آپ کلام روز پڑھیں گے تو جو کلام ہے وہ آگ کی مانند ہے، وہ سب چیزیں جلا دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی، یہ آٹومیٹکلی ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ جب آپ روز مانگیں، روز پڑھیں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اوپر بیٹھا جواب نہ دے کہ میرے بندہ مجھ سے روز باتیں کرتا ہے۔ کیونکہ کلام جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بول رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میری آواز سن رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کی اس کانوں سے آواز نہیں سن سکتے۔ وہ ایسے گرجتا ہے کہ جو پہاڑیں وہ ہل جاتے ہیں، وہ لاوا اگلتے ہیں جب اس کی گرج کی آواز پہاڑ سنتے ہیں۔ اور اگر ہم پرستش کر کے اس کے لیے تخت نہیں بچائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پتھروں کو بولے گا اور وہ جاگ اٹھیں گے، اور وہ پتھر بولیں گے آخر آدم بھی تو پتھر تھا، وہ کس چیز سے بنا تھا؟ مٹی سے۔ تو جب اس نے دم پھونک کے اس کو جان جیتی جان بنایا تو پھر آپ اور میں جو گوشت پوش کے ہیں اگر نہیں پرستش کرتے تو کیا وہ پتھروں کو نہیں بول سکتا؟ وہ بالکل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ وہ ناممکنات کا خداوند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یرمیہ نبی کے صحیفے میں کہ میرے جو منہ کے جو الفاظ جو نکلے ہیں وہ جب تک اپنا کام کر نہ لے وہ مجھ تک واپس نہیں لوٹیں گے۔ پڑھیے گا۔ اب جسم کے کام تو ظاہر، یہ جسم کے کام ہے، یہ روح کے کام نہیں ہے، یعنی حرام کاری، حرام کاری،
नापाकी, नापाकी, शैवत परस्ती, शैवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, जादूगरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। तो ये एक तंबीह का कलाम भी है, और लेकिन इससे डरने की जरूरत भी नहीं कि जो इस वक्त ऐसे नौजवान अगर हम में मौजूद हैं या उनकी माएँ इस वक्त मौजूद हैं, वो घबरा जाएं कि अब कोई चारा नहीं। चारा तो है यीशु। यीशु वो ऐसा मोहब्बत का सा चश्मा है जिससे धो के हर गुनाह धुल के पाक साफ हो जाते हैं। तो जिनकी माएँ यहाँ पे हैं, जिनके बच्चे ऐसे कामों में मुलव्वस हैं, जो कि नापाक हैं, वो उनके लिए दुआ करें। दुआएं अगर वो कर रही हैं और वो नहीं अपनी रविशें दुरुस्त कर रहे, तो रोजा रखें। कलाम में लिखा है, हम पढ़ते हैं कि जो चीज जब यीशु की शागिर्द आए तो वो यही कहते थे कि हमसे ये नहीं हो रहा, तो खुदावंद ने उनको क्या कहा, ये दुआ, ये रोजे के बगैर नहीं काम होगा। तो कोई काम अगर आपके नहीं हो रहे दुआ सिर्फ करके, तो रोजे में ठहरे, उससे गिड़गिड़ाएं, उससे मांगे। और यही बात है जो हम कलाम में सुनते हैं, वो कहते हैं कि तुमने अभी तक मांगा ही नहीं, मांग के तो देखो। और मांगना किस तरह से, इस ईमान से कि आज मांगा तो हमें मिल गया। अब वो कल अपना नशा छोड़े, वो परसों नशा छोड़े। आपने जब दुआ की तो आप शुक्रगुजार होना शुरू हो जाए कि खुदावन मैंने मांगा, तूने मुझे दे दिया। शुक्रगुजारी में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं। जब हम शुक्रगुजार होते हैं, उसकी हर बुरी चीज जो हमें मिलती है तो वो हमें दुगना देता है। अय्यूब के साथ क्या हुआ था, वो शुक्रगुजार था, उसके दिल में शुक्रगुजारी की रूह थी कि उसका सब कुछ जब छीन गया, उसकी बीवी ने भी कहा तू किस खुदा को पूछता है, उसने तो सब कुछ तुझसे ले लिया। उसने क्या कहा, क्या मैं अपने खुदावन से सिर्फ अच्छी चीजें लूं और बुरी चीज ना लूं और शादमान ना हूं? तो शादमानी क्या है, शादमानी ये है कि मैं तंगी में भी खुश हूँ, मैं जाती में भी खुश हूँ, मैं गमी में भी खुश हूँ, शादमान हूँ। खुशी फर्क है। खुश आप आज हैं कि आज हमारे बच्चे ने एग्जाम पास किया, कल गमी होगी किसी और बात की। लेकिन शादमानी दिल में जब आती है तो वो जाती नहीं। और कहते हैं कि शादमान दिल शिफा बख्शता है, शादमान दिल शिफा बख्शता है। और जिसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी है वो शादमान रहता है और उसको शिफा मिलती है। ये एक ईमान आपकी बढ़ोतरी के लिए बात कर रही हूँ कि जब लास्ट ईयर हम लोग आए, हमारी अपनी कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, और उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में मेरे मुसलसल काफ़ी अरसे से सीधे घुटने में दर्द था। और मैंने कभी इसके लिए दुआ नहीं की क्योंकि मैं भागम दौड़ इधर उधर जाना और सब खुदाम यीशु के लिए काम करना और उसकी बादशाहत के लिए काम करना और रूह जीतना, और ये सब मुझे रूहानी तौर पे ये मेरी भूख थी। और जब हम 3 दिन गुजर गए और आखिरी दिन था, रोज़ाना इनमें लोगों के लिए दुआ होती थी, और मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे लिए भी दुआ होनी चाहिए। दूसरे साहिबान को, पास्टर को जो हमारे साथ थे, मैं दूसरों के लिए दुआ करती रही। और आखिरी दिन परस्तिश के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे घुटने से जो कड़कड़ की आवाज़ आती थी और जो तकलीफ होती थी वो चली गई। मैं रोज़ाना दूसरों के लिए दुआ कर रही थी, मैं दूसरों के लिए दुआ कर रही थी और खुदावंद ने मुझे बगैर मांगे दे दिया। तो खुदावंद क्या आपके लिए ये नहीं कर सकता? आपके लिए भी कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है कि आप कितना अपना आप पीछे रखें और खुदावंद को आगे रखें।
जितना आप अपना आप को पीछे रखेंगे और खुदा यीशु को आगे रखेंगे, वो आगे आगे चलेगा और आपके सब बिगड़े काम भी बनते चले जाएंगे। क्योंकि वो शख्स जो कि बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, शान और शौकत, दौलत, इज्जत सब कुछ थी। और खुदावंद यीशु ने उससे पूछा कि तू ये करता, तो ये करता। उसने कहा मैं सब करता हूँ। वो सब करता था। जो जितने भी सवाल, उसकी मैं बारी भी नहीं मिली जाती। आपके पास सब कलाम है और आप पढ़ते हैं और आपको ये किस्सा भी पता है। तो फिर खुदा यीशु ने उसको कहा कि अपना सारा माल और दौलत छोड़ दे, गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले। क्या वो ये कर पाया? क्योंकि वो बहुत मालदार था। तो ये अगर आज आपके पास माल और दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं, ये माल और दौलत यही रह जाना है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने माल और दौलत, अपने बंगले, अपनी गाड़ी अपने साथ अपने कॉफन बॉक्स में रख के लेके जाए। कोई है ऐसा? हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे अमाल तो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे अमाल करके भी हम उसके सामने नहीं खड़े हो सकते कि देख खुदावंद हमने कितने अच्छे काम किए। वो ही जा सकता है जिसकी दूसरी पैदाइश हो। और दूसरी पैदाइश जब होती है तो फिर आपका दिल बदलता है, और जब दिल बदलता है तो खुदावंद वहाँ हुकूमत कर सकता है। उसकी बादशाही इधर कायम होती है। जब खुदावंद की बादशाही आपके दिलों में कायम होगी तो फिर नई पैदाइश होगी, और नई पैदाइश जिसकी होती है वो अब तक जीता रहेगा और वो आग की लपटों में नहीं उसका इख्तिताम होगा। तो हम अपने आमाल से नहीं पहुंच सकते हमेशा की जिंदगी में, ये याद रखें। हम अपने आमाल से हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। हम अपने सिर्फ नई पैदाइश उसके वसीले से दाखिल हो सकते हैं। और नई पैदाइश कैसे होती है? जब हम दिल से ईमान रखते हैं, मुंह से इकरार करते हैं, तो फिर हम नई पैदाइश होती है। तो आज का कलाम बादशाही से शुरू हुआ। वो बादशाही जो आसमान पे नहीं, जो हमारे दिलों में उसको कायम करना चाहता है, क्योंकि उधर तो उसकी बादशाही चल रही है। हम आए हमारे बाप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। इसका मतलब है कि उधर उसकी मर्जी पूरी हो रही है, यहाँ पे नहीं पूरी हो रही, नहीं पूरी हो रही। तो हमें उसकी मर्जी पूरी करना है, अपने दिलों को बदलना है, नई जिंदगी का मजा चखना है, और फिर उसकी बादशाही में हम दाखिल हो गए। ठीक है, दिलों को बदल के। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के जरिए बड़ी बरकत दे। और इस वक्त इख्तिताम के वक्त मैं दावत देना चाहूंगी कि जिस जिंदगी को इस कलाम ने छुआ और वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ का ला के पास्टर बन जाए या मेरी तरह खादमा बन जाए। वो कई साजों के जरिए अपनी जिंदगी जो है वो दे सकता है खुदावंद को काम के लिए। कोई दुआ की सूरत, कोई जो अपना रेगुलर काम कर रहा है उसी में वो खुदावंद के अपने बच्चों में वो तालीम दे सकता है कि आपने कैसे अपनी जिंदगी चलानी है। तो इस वक्त जो भी शख्स अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता है, मैं चाहूंगी कि वो सामने आए। और अगर आपने ऑलरेडी दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, आप कलाम पढ़ते रहें और रूह से मामूरी आपको मिलती जाएगी और खुदावंद अपने भेद आप पे खोलेगा। तो इस वक्त वो वक्त है कि जो समझते हैं कि हमें नई पैदाइश का मजा चखना है, तो वो अपने हाथ खड़ा कर दें। उनके लिए हम यहीं से दुआ करेंगे, यहाँ बेशक वो ना आए। प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज गॉड।
मेरी दिल से दुआ है कि आज के बाद आज मेरी नई पैदाइश का दिन, तारीख मैंने अपनी बाइबल में लिखी हुई है, मैंने मरियम को भी दिखाया है 17 अप्रैल, ताकि मुझे कभी भूले ना कि मैं किस दिन पैदा हुई थी, दूसरी पैदाइश। और उसके बाद आपकी तंबी ज्यादा होगी अगर आप गलत काम करते रहेंगे। तो कलाम पढ़े ताकि आप अपने काम से जो खुदा उनको पसंद नहीं है वो पीछे हटें। तो इस वक्त अपने भाई को दावत दूंगी। मैं चाह रही थी कि मिथुन भैया को, मिथुन भाई जो हैं जिन्होंने मुझे ये दुआ में रहनुमाई करके खुदा ने लेके आए, लेकिन आई थिंक वो चल गए, तो है नहीं। तो मैं अपने भाई को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और स्पेशली वो लीड करवाएंगे। थैंक यू। खुदा आपको बैठाइए। अच्छा, जिसने आज फैसला किया है कि वो अपनी ज़िंदगी अब खुदावन की रास्ते पे लेके जाएगा या जाएगी, वो अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। बेफिक्र हो जाए, इस वक्त कोई, सब आंखें बंद हो जाएं, सब अपनी आंखें बंद कर लें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम समझते नहीं है, जैसे हमने कल तौबा की, आज तौबा की, फिर दोबारा, बट अगर जो आज फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए, ठीक है, ओके, निकालें रोमन्स 10 में। अगर तू अपने दिल से ईमान लाए कि यीशु मसीह खुदा है, क्या आप अपने दिल से ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, और मुंह से इकरार करे कि खुदावन ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू नजात पाएगा। कितने लोग इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह को बाप ने मुर्दों में से जिंदा किया? ओके, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, दिल से इस पे आप ईमान लाते हैं? ओके, खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन ये चाहते ये नई पैदाइश की आपकी इब्तिदा है, और फिर आप अपने गुनाहों का इकरार करें और हर किस्म की उस रविश से जो कि कल तक या अभी 5 मिनट पहले तक आपकी जिंदगी में थी, उससे आप तौबा करें। वक्त लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, वक्त लगेगा, क्योंकि देखें जब आप इस काम पे करेंगे तो क्या आपका मुखालिफ आपके खिलाफ जोर नहीं पकड़ेगा? हो सकता है ये सालों साल की मेहनत आपको ओवरकम करना पड़े, आपको गालिब आना, एक दिन में आप गालिब नहीं आ सकोगे, बट अगर आपने आज तौबा कर ली है, आपने इस बात का इकरार किया कि यीशु मसीह खुदा है और बाप ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, तो आप नजात पा गए हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है? आज के बाद से 4 काम करने हैं। दुआ में ठहरना है, बुजुर्गों से तालीम लेनी है, और रिफाकत रखना है। ठीक है, सो आपने इन बातों को आपने अपने रोज इसको प्रैक्टिस करना है। आप अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। हालेलुया। इस मैं चाह रही हूँ कि हालेलुया। जिन्होंने अपने लिए प्रे करवानी है, जो बीमार हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, और जो कुछ देर पहले बहनें खड़ी हुई थी कि हम अपनी ज़िंदगी टोटली खुदा को देते हैं और खुदा की राह में अब उसे गुजारेंगे, वो भी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। डॉक्टर स्मिता खुदा की खादमा उनके लिए प्रे करना चाहती हैं। हालेलुया। जिन जिंदगियों ने अभी इकरार किया कि हाँ आज हम खुदा को अपनी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो मैं उनको खास ब्लेस करना चाहती हूँ। वो प्लीज़ यहाँ पे आ जाए।
जो खड़े हुए थे वो चार थे। एनीवेज, बरकत जो भी लेना चाहता है कि फर्दर अपने जो है वो खुदावन जैसे भी चाहता है उनको इस्तेमाल करे। ये टाइम है बरकत का, और मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी बरकत लिए बगैर जाए। खुदावन यीशु, इस वक्त इस बेटी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे तू चाहता है इस्तेमाल कर। ये तेरे गले में वहाँ चले जहाँ तू चाहता है, जहाँ पाक रूह उसको लेके जाता है। बड़ी बरकत दे और अपने लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये गवाही देने वाली बने। यीशु के नाम में मांगती हूँ। खुदावन यीशु, ये तेरी बेटी जो खुद तुझसे प्यार करती है खुदावन, इस पे अपनी नज़र कर और इसकी दिलों की जो ख्वाहिश है, इस वक्त जो परेशानी इसके दिल में खुदावन तू जानता है। इस वक्त ये परेशान हाल तेरे पास आई है खुदावन, इसको खाली हाथ ना जाने देना खुदावन। इसकी परेशानी को अपने हाथों में ले और इसकी हर गुंजल को दूर कर जो इसकी जिंदगी में है। वो तमाम गुंजलें जो इसकी जिंदगी में है वो यीशु नाम में दूर हो जाएं। हर बंधन यीशु नाम में टूटे। हर बंधन जो इसकी जिंदगी में उलझाने के लिए आया है वो यीशु नाम में खत्म हो जाए, क्योंकि उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में कुदरत है और उसके नाम में हर बंदिश टूटती है। यीशु के नाम में रिहाई मिले और सारा जलाल हमारे खुदा को मिले। आमीन। आपकी क्या ख्वाहिश है? आप क्या चाहती हैं यीशु के लिए करना? खिदमत करना। कोई खास खिदमत? जो खुदा है, आप क्या चाहते हैं? बस खिदमत करना चाहते खिदमत करना। आप? खुदा के नाम जलाल देना। आमीन। खुदावंद यीशु, जो इन बच्चों की ख्वाहिश है दिली, वो इन्होंने इजहार किया। इनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर, क्योंकि लिखा है वो दिलों की ख्वाहिशें पूरी करता है। जो हम मांगते हैं वो देता है। और आज उन्होंने मुंह से इकरार किया है कि इनकी दिल की ख्वाहिश क्या है। खुदावंद इनकी ख्वाहिश पूरा कर और इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये जिंदगियां और जिंदगियों को तुझ में लाने वाली बने और भेड़ें आए, क्योंकि हम यहाँ उन भेड़ों के लिए आए हैं जो खोई हुई हैं। खुदावंद इनको तैयार कर ताकि ये और भेड़े लाने वाली बने। यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। भाई आप कोई खास खुदावंद के लिए करना चाहें? मैंने बहुत कुछ किया है। और जिंदगी आप में क्या खुदावंद की क्या ख्वाहिश है? क्या मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा खुदावंद के काम करूं। आमीन। खुदा शुक्र करते हैं इस भाई के लिए जिसको तूने चुना और अपनी जैसे कि ये मुंह से इकरार किया कि मैं खुदावंद के काम करता हूँ। खुदावंद ये मजीद तुझ में बढ़े, तुझ में बड़े फूले और जिंदगियां तुझ तक लाने का वाला बने, क्योंकि यहाँ पे हम सबको ये हुक्म दिया है कि जाओ और फर्जंद बनाओ और डिसाइपल बनाओ। हमें ये हुक्म मिला है सबको। तो खुदावंद ये जहाँ कहीं भी जाए, ये खुदावंद यीशु का कलाम दूसरों की जिंदगी में शेयर करने वाले बने। अपनी जिंदगी से इनका खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो और जिंदगियां तब्दील हो, जैसे कि तू चाहता है कि हम में से तू दिखे, ये घटे और तू बढ़े, हम सब में हम घटे और तू बढ़े और सारा जलाल खुदा को मिले, क्योंकि यीशु का आना जल्द है। वो जल्द आ रहा है और वो हमें आसमानों पे मिलेगा और हमें पार ले जाएगा, नीले आसमान के पार। आए हम सब तैयारी करें उसके साथ
हवा में उसके साथ इस्तिकबाल की तैयारी करें। Yes. सब रूहें खुदावन जाने और अपनी जिंदगियां उसके हाथों में दे दें Yes. और फिर बहुत बरकत पाएं। आमीन। आमीन आमीन। जी डॉक्टर स्मिता, हमारे दरमियान एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। एक लेडी है, वो गैर मसीही है, वो हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में, उनका नाम ज्योति है। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, हम सब उसके लिए प्रे करेंगे। और जितने भी जी ये सिस्टर हमारे सामने खड़ी हैं, हाँ जी, इनकी सिस्टर के लिए हम प्रे करेंगे। एंड कोई भी प्रे करवाना चाहती है, कोई ज़िंदगी, तो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं या आगे भी आ सकते हैं, ताकि ले हैंड करके उसके लिए प्रे की जाए और हम खुदा के बड़े जलाल को देखें। हालेलुया। आप हैं? आइए, प्रेज हालेलुया। आपके लिए यहाँ प्रे होगी, आप विश्वास करें कि हीलिंग वहाँ पर हो रही है। हालेलुया। क्या नाम है आपका? मल्होत्रा। और आपकी बहन ज्योति आईसीयू में है। क्या उम्र है उनकी? क्या उनको प्रॉब्लम है? कि गुर्दों का मसला है। सही। इस वक्त वो होश में है कि होश में नहीं? होश में नहीं है। शादीशुदा है? आप शादीशुदा हैं? ठीक है। आप, मुझे नहीं पता पूरी इबादत में थी या नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, तो हम दुआ तो करते हैं, लेकिन हम सबका मानना है कि हमें सबको जो शिफा मिलती है। सही, ठीक है। तो हम जो दुआ करते हैं वो यीशु के नाम में करते हैं। हमारे लिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जब मैं दुआ करूंगी तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करूंगी। अगर आपका ईमान है कि खुदावंद यीशु आपकी बहन को ठीक कर सकता है, तो ही मैं दुआ करूंगी। है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। मैं आपका हाथ पकड़ के सब दुआ कर रही हूँ और आपने अपनी बहन के पास जाके उनके माथे पे सलीब का निशान इस हाथ से बनाना है, सीधे हाथ से। ओ यस। ठीक। हालेलुया। अजीम खुदावन बहर बर के सब खालिक इसी हाथ पर। पर कश्य सोरो। ओ यस, हालेलुया हालेलुया। सब अपना सीधा हाथ इस बहन की तरफ बढ़ाएं। सीधा हाथ, सब अपना सीधा हाथ इस बहन की तरफ बढ़ाएं और ये मान रखें कि हम खुदावन यीशु से मांग रहे हैं सब कुछ। और वो जो मुर्दों को जिंदा करता था, वो आज भी सब कुछ करने में कादिर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावन, तू जो अज़ल से अब तक यकसा है, तू जो हमसे प्यार करने वाला है, खुदावन तुझसे कुछ छुपा नहीं। खुदावन हम जितने भी गुनाह में पड़ जाएं, खुदावन तू, तेरी नजर हमें देखती रहती है। हर वक्त 24 घंटे तू बुलंदियों से हमें देखता रहता है और ये देखता रहता है कि कौन यीशु के नाम से तुझे पुकार रहा है और कौन दिल की गहराइयों से ईमान रखते हुए पुकार रहा है। खुदा यीशु, तू जानता है, तूने मुझे इम्तिहान में से गुजारा है, तूने मुझे फतहमंदी दी है और तू मेरे ईमान को भी जानता है। मुझे कुछ प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। और खुदा इस वक्त इस बच्ची की बहन जो इस वक्त आईसीयू में डायलिसिस में है, जो इस वक्त तुझे नहीं जानती, जो इस वक्त बेहोश है, लेकिन उसकी बहन ने इकरार किया कि हाँ वो यीशु को के नाम पे ईमान रखती है कि वो जिंदगी दे सकता है, वो सेहत दे सकता है। खुदावन खुदा, ये यीशु के नाम के लिए मौजूदा हो। यीशु के नाम में ज्योति उठ खड़ी हो, उसके गुर्दे रिस्टोर हो यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के लहू में वो कुदरत है, वो ताकत है जो कि हर बीमारी को धो सकती है। खुदा यीशु, इस बहन के हाथ में तेरा लहू लगा देती हूँ, इस ईमान पे कि ये जैसे अपनी बहन के माथे पे सलीब का निशान लगाएगी, तो वो लहू मेरे हाथ से होता हुआ ईमान के वसीले से उसके माथे तक पहुंचेगा। और वो जो खुदावन को नहीं जानती, उसका जिस्म
खुदावन ने बनाया, क्योंकि वो तो हम जब माँ के पेट में होते हैं तभी हमें जानता है, हमारी रविशें जानता है, हम कहाँ उठेंगे कहाँ बैठेंगे वो सब जानता है। तो इस वक्त वो जिस्म नहीं जानेगा, लेकिन उसकी रूह में होके बोल, उसकी रूह में होके बोल ला खुदावन, ताकि यीशु को जलाल मिले, क्योंकि हम जिंदा खुदावन यीशु को मानते जानते, उससे मांगते, क्योंकि लिखा है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। खुदावन आज तक तूने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया, तूने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और खुदावन इस वक्त ये बच्ची जो ईमान में खड़ी, खुदावन इसकी बहन की जिंदगी के लिए भी ऐसा ही चाहती हूँ कि वो जब आँख खोले उसको ये बच्ची बताए कि सलीब के निशान ने तुझे शफा दी, तो यीशु को जानने वाले बने, होश गले में शामिल हो जाए, और उसके वसीले और भेड़े आगे बादशाही में और लोग शामिल हों, और शादियाने आसमान पे बजे, क्योंकि हमारा खुदावंद यहोवा पाक खुश होगा। और खुदावंद खुदा तेरे जलाल के लिए ऐसा हो, मेरी उसमें कोई सताइश नहीं, मेरी उसमें कोई जय जयकार नहीं। जय जयकार हो तो यीशु की, सताइश हो तो यीशु की। खुदावन बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, और अपने नाम की खातिर ऐसा ही हो। और सब बोलेंगे आमीन। जो जिनकी औलाद नहीं है वो यहाँ पे हैं अभी। मैं बेशक मैं प्रेयर करती हूँ, लेकिन जिसको ख्वाहिश है उसको यहाँ मौजूद होना चाहिए। क्या कुआं प्यासे के पास जाता है? कौन कुएं के पास जाता है? ये प्यासी हैं क्योंकि ये माँ है, लेकिन बच्चा किसको चाहिए? इस वक्त उनके लिए दुआ हुई क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और वो नहीं होश में नहीं है। तो मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करना चाहूंगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो मौजूद हों। लेकिन आपको मैं ऐसे जाने भी नहीं दूंगी, मैं दुआ जरूर करूंगी। और खुदावन करे कि आप जब उन तक ये पैगाम पहुंचाएं तो वो उसको रिसीव करें, क्योंकि देखिए फोन सबके पास है, स्मार्टफोन आजकल। जब आप कॉल मिलाते हैं तो जिस बंदे को मिलाते हैं उसके पास स्मार्टफोन होता है तो कॉल रिसीव होती है। अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या व्हाट्सएप की रिसीव होगी कॉल? तो अगर मैं इनके दुआ करती हूँ और ये पैगाम लेके जाती हैं, और अगर वो रिसीव नहीं करती, ईमान वो नहीं लाती क्योंकि वो इस वक्त होश में है, तो क्या वो बरकत रिसीव करेंगी? नहीं। तो मैं दुआ जरूर करूंगी अम्मा जी, मैं करूंगी। आपने उनके लिए जाके ये पैगाम लेके जाना है, ठीक है? कहाँ रहती हैं? कितने डॉक्टरों के पास गए? डॉक्टर घर आते थे कि वो डॉक्टर के पास जाती थी? हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अस्पताल तो हमारे पास नहीं आता, ना डॉक्टर घर आते हैं। फिर हम दुआ के लिए क्यों कहते हैं कि ओ गोली मार बहुत दूर है, ओ फलानी जगह रहती है? क्यों हम दुआ के लिए क्यों नहीं इस तरह से मांगते जैसे कि उस औरत ने मांगा था कि यीशु तू ने देना है? वो टुकड़े जो गिरते हैं वो भी तो कौन, वो यीशु ने उसको इनकार कर दिया था कि मैं तेरे लिए नहीं आया, लेकिन उसने जब तक बरकत हासिल नहीं कर ली वो नहीं गई। तो मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, आपकी बच्चियों के लिए। क्या नाम बताया? नताशा चिड़िया। चिड़िया कोई अपना भी नाम होगा ना?
रुखसाना। अच्छा, और अच्छा, नताशा, चिड़िया और बेबी। अब इसका खुदावंद ही जानता है इनको, इनके सही पूरे नाम नहीं, इनको भी नहीं पता। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये अगर वो रिसीव करेंगे यहाँ पे होते तो उन तक कलाम पहुँचता, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती, खुदा की बादशाही के बारे में वो जानती, तो ये काम ज़्यादा तेज़ी से हो सकता था। लेकिन अब वो नहीं है, तो हम फिर भी अपना हाथ बढ़ाएंगे और दुआ मांगेंगे। सब अपना सीधा हाथ इनकी तरफ, अपना सीधा हाथ दीजिए। ठीक है। बेटे की अभी औलाद नहीं है, ये नताशा आपकी बेटी और फकीरा बेटा है, और इन सबकी औलाद नहीं है, चारों बहन भाइयों की औलाद नहीं है। आपके ये बच्चे हैं सारे आपके, और आपके हर्ष और जिंदा हैं, फौत हो गए। सही। भैरवर के खालिक मालिक, तू जो जिंदा खुदावन अजीम अजीम खुदावन है, खुदावन तेरा ये फजल है कि हम बढ़ें और हमें औलाद जैसी बख्शिश मिले। खुदावन इस वक्त वो जिंदगियां जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी वसीले उनके लिए दुआ गो ये बुजुर्ग इस वक्त बैठी है और चाहती है कि इनके बच्चों की औलाद हो। ये 4 बच्चे जो तू जानता है जिनकी जिंदगियों में कमी है, कोई कमी है, वो कमी यीशु की है, वो कमी यीशु की है। खुदावन यीशु उनकी जिंदगियों में काम नहीं कर रहा, तो खुदावन इस कमी को हाथ बढ़ा के पूरा कर। उनको ख्वाबों और रोआ में खुदावन अपना आप दिखा, ताकि तुझे वो तुझे जाने और तुझे मानने वाले बने, और हर ब्लेसिंग खुद ब खुद उनके ज़िंदगी में आएगी। खुदावन इस वक्त इन सब जिंदगियों के लिए औलाद की नेमत मांग लेती हूँ। औलाद की नेमत, औलाद जो है वो खुदावन की तरफ से मिलती है। जब तक खुदावन ना चाहे कोई ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं आ सकती। हर ज़िंदगी इस दुनिया में तेरी मर्ज़ी से आती है खुदावन, और हर ज़िंदगी तेरी ही मर्ज़ी से जाती है। कोई रूह ऐसी नहीं जो तेरी मर्ज़ी के बगैर आ सके या जा सके। खुदावन हाथ बढ़ा के इनको बरकत दे, हाथ बढ़ा के इनकी ख्वाहिश को पूरा कर, ताकि ये गवाही दे सके कि यीशु नाम के वसीले हमें ये बरकत मिली, और अगले आने वाले दिनों में वो यहाँ पे जब हम इकट्ठा हों तो ये गवाही देने वाले बने कि हम नहीं मौजूद थे, लेकिन खुदावन ने ये मौजज़ा किया। खुदावन हम घटे और तू बढ़े, तेरा जलाल हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, और सब कुछ तेरा ही है, और वो बच्चे तेरे ही नाम के वसीले आगे बढ़े और तुझको बख्श दिए जाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आप उनको जाके फिर तो आपको बताने का कैसे बताएंगे, मिलते कभी नहीं है, तो जब भी आए अगर मिलेंगे नहीं तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, कि मैं यहाँ से बोलूँ और उधर हो जाए। अगर उनको पता भी नहीं चलेगा, आप उनके पे हाथ भी नहीं रखेंगी कि ये बरकत मैं लेके आई हूँ, अगर आप हाथ भी नहीं रखेंगे उनको, तो फिर तो ऐसे खुदा काम नहीं, ठीक है। यीशु के शागिर्द भी चल के जाते थे, वो जो कि कितना छत उन्होंने ऊपर से खोल दी कि वो जो अपाहज था वो नीचे पहुँचाए, तो ताकि वो उसे छू सके। तो अगर आप छू भी नहीं सकते, अब वो बहुत दूर है, तो फिर तो कलाम तो किसी तक खरा नहीं पहुँच रहा, ना बरकत पहुँच, ठीक है। बिल्कुल, फिर खुदावंद आपके ईमान के वसीले से करे, मैं कहती हूँ खुदावंद इनके ईमान के वसीले से करे थे। गुड इवनिंग। हाँ जी जी हाँ। अच्छा, आपने घर में भी घर में ये लगने वाली है, आपको भी है।
और आपके तो बच्चे हैं, क्योंकि जो आपकी एनवायरनमेंट है उसका भी असर होता है कि आपकी चीज़ें क्या हैं, आपके बेड ये वो फंगस अगर है तो वो कॉन्स्टेंटली वो होगी, वो आपने सब अच्छा सही। और आप एक कोई और खानदान नहीं रहता है साथ, क्या आप अकेले रहते हैं? सही। सब अपना राइट हैंड बढ़ाए इनकी तरफ, ठीक है, कोई नहीं जान, सब अपना सीधा हाथ इनकी तरफ करें। थैंक यू। अगर किसी और ने प्रे करवानी है तो आ सकते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु, तू जिंदगी का सरचश्मा है और सब नेमतें तुझसे हमें मिल जाती हैं। हर बीमारी यीशु नाम से जाती है। यस। हमारा ईमान है कि यीशु नाम के सामने कोई बीमारी खड़ी नहीं रह सकती। खुदावंद, चाहे वो ज़ाहिरी हो चाहे अंदरूनी हो, यीशु नाम ही काफ़ी है, यीशु नाम ही काफ़ी है। खुदावंद, आज ये जो तेरी बेटी अपनी बीमारी के साथ आई है कि इसके खावंद को, इसको और इसकी बेटी को, तीनों को जिल्द की बीमारी है, जो फंगस की इन्फेक्शन इनको हो जाते हैं। खुदावंद, इन्होंने बहुत इलाज करवाया। खुदावंद, आज इनको खाली हाथ जाने ना देना। यीशु के नाम। खुदावंद, इनको आज खाली हाथ जाने ना देना। यीशु के नाम में। यीशु का लहू खुदावंद इस पे लगाती हूँ, सर की चांदी से पाँव के तलवे तक। खुदावंद, यीशु के लहू में धो डाल के नाम। अपना हाथ, जैसे मैं इसके सर पे रखती हूँ। खुदावंद, इसको पाक कर, यीशु के नाम। इसकी बेटी को खुदावंद पाक कर, सर की चांदी से पाँव के तले तक यीशु में के लहू में धो डालती हूँ। और ईमान से इसके शौहर को भी सर की चांदी से पाँव के तले तक यीशु के नाम में धो डालती हूँ, उसका लहू से धो डालती हूँ। खुदावंद, यीशु के नाम। और जो कोई जो आंख इनकी तरफ उठ रही है, जो आंख इनकी इन हस्बैंड एंड वाइफ की तरफ उठ रही है, उन सबको मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम। यीशु के नाम में बांध देती हूँ। वो सारी आंखें जो कि अच्छी आंखें नहीं हैं, जो हसद की आंखें हैं, जो जेलसी की आंखें हैं, वो उनको मैं यीशु के नाम में बांधती हूँ। कोई आंख इनकी तरफ ना जो भी उठे इस गलत अंदाज से देखे, वो यीशु के लहू में सब धुल जाए और इन तक कोई ऐसी ईवल साइट ना पहुंचे जो इनको जिल्द की बीमारी में मुब्तला करती है। खुदावंद, तू जानता है, मैं नहीं जानती। तू जानता है उन सबको जो इनकी तरफ देख रहे हैं। खुदावंद, तो खुद उनकी आंखों का जिम्मा ले और इनको अपने हिसार में ले और इनको अपनी पाकीज़गी में ले ले, ताकि ये धुल के पाक साफ हों और जो मेडिसिन काम नहीं कर पाए वो यीशु का लहू कर पाए। यीशु के नाम में ये हो, ताकि ये गवाही देने वाले बने कि हमारे यीशु ने हमारे लिए किया। यीशु नाम ही सब कुछ है और उसके नाम में कुदरत है। यीशु के नाम से मांगा और पा लिया। हालेलुया, आमेन। सब बोलेंगे आमेन। आपने भी दो करना है? आपने किसी को करना है? अच्छा, आपकी औलाद की तो नहीं है? किसको औलाद की तो नहीं है? आपकी बेटी का नाम है?
खुदा मैं बल्कि खालिक व मालिक। ओह यस, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदावन है और तू खाली हाथ नहीं लौटाता। तूने राहल के रहम को बंद रखा, लेकिन उसको भी अपनी बरकत मिली। उसे गुनाह सरजद हुआ था और अपने साथ वो दूसरे खुदा ले आई थी। खुदावंद आज वो सारे गुनाह जो बाप दादा के वजह से इसकी बेटी तक पहुंचकर उसके रहम को बंद किया हुआ कि वो औलाद जैसी नेमत ना मज़ा चख सके। खुदावंद उन सारे कर्ज को, सारी लानत को जो मौरूसी है, यीशु के नाम से काट डालती हूँ। यीशु के नाम से काट डालते हूँ, क्योंकि हर बंधन यीशु के नाम से तोड़ा जा सकता है। वो तमाम जनरेशनल कर्सेस, वो तमाम मौरूसी जो कि पुष्ट हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाते हैं गुनाह और फिर हमारी औलादों के सामने आते हैं। खुदावंद उन सबको यीशु के नाम से काट डालती हूँ। उस बच्ची को धो डालती हूँ जो लाड़काना में है, उसके शौहर को तेरे सामने लाती हूँ। उसके माँ बाप और उसके बाप दादा के जो गुनाह हैं, जो उनके सामने आके जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही, खुदावंद तू हाथ बढ़ा के उन पर नजर कर, उन पर बरकत दे, उनको बरकत दे, ताकि वो तेरी जय जयकार करें और तेरे नाम के वसीले से जो उनको बरकत मिले वो सबको बताने वाले बने। क्योंकि खुदावंद तू खाली हाथ नहीं भेजता, लेकिन तू चाहता है कि हम तुझसे मांगे, लेकिन कभी हमारे अपने गुनाह ही हमारे सामने आ जाते हैं और हमें हमारी चीज़ नहीं मिलती। तो खुदावंद आज ईमान से ये बहन आई है और खुदावंद इसके ईमान के वसीले से खुदावंद उन बच्चों को बरकत दे, ताकि वो यीशु के नाम से धुल के पाक साफ हो और अब के बाद उनको बरकत मिले और वो बच्चा जो जन्म ले वो यीशु के नाम में परवरिश पाए, यीशु के नाम तले परवरिश पाए। खुदा इस बच्ची पे भी रहम कर, खुदा इसको ताकत दे, इसको जो शुगर की प्रॉब्लम है खुदा इस पर रहम कर, अपना हाथ बढ़ा, इसकी मुश्किलों को आसान कर, इसको ताकत दे, इसको अपना कलाम पढ़ने की फजीलत दे, ताकि ये जाने कि तू सब कुछ है। हम बगैर आंख, बगैर पैर, बगैर हाथ के भी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी रास्तबाजी यहाँ पे पूरी ना करें तो हम नहीं पहुँच सकते तुझ तक खुदावंद। लेकिन जिसने मांगा है तो खुदावंद इसके ईमान के वसीले हो, इसको यीशु के लहू में धो डाल, सर की चांदी से पांव के तलवे तक यीशु का खून इस पे लगा देती हूँ। खुदावंद ये जैसे जैसे कलाम पढ़े तो इसके अंदर होके अपनी कलाम के वसीले हर एक नर्व, हर एक खून का जर्रा, हर एक वेसल, हर एक अज़ा पाक साफ हो और ये दिन ब दिन हिम्मत, ताकत और अपने जिस्मानी तौर पे स्ट्रेंथ पकड़ती जाए और ये बता सके कि हाँ यीशु ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। एक मिनट पढ़ नहीं सकती, आपके घर में कोई पढ़ सकता है? बेटा पढ़ता है। जी मुशीर कादमती का आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस हसीन शाम के लिए जो खुदा बाप हम सब ने तेरी पाक हजूरी में गुजारी है। खुदा आसमान के तले खुदा तेरी बरकतों से खूब लुत्फ अंदोज हुए हैं। तूने वर्शिप में खुदा कलाम के सीखने सिखाने में
हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की है, पाक रूह को नाजिल किया है, हम सब को छुआ है, हमने तुझसे ढेरों बरकत ली है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंदा सारे साउंड सिस्टम के लिए, साजो आवाज़ों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब जब कभी और ये तेरे लिए इस्तेमाल हो तो खुदावंद तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब बने। उस हदिया के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से लौटाया है, मैं तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ, चाहता हूँ देने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे, किचन पर बरकत हो और आसमान के दरीचे खोल कर तो अपने लोगों को अपनी उन नेमतों से नवाज जिनके वो मुंतजर हैं, जो वो चाहते हैं। अपनी बहन सुनीता के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप जो दूर से आई है खुशखबरी लेकर, और आसमानी बाप इसके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इसके ख़ानदान घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इसकी खिदमत को और बढ़ा। यीशु के नाम से एक अरसा के बाद अपने बड़े भाई विंस्टन को देखा है, उन्हें से सलामती में पाया है, उनके लिए मजीद चाहता हूँ यीशु के नाम से खुदावंदा ये सलामती ये सेहत उनकी ज़िंदगी उनके ख़ानदान घराने में कायम रहे। हम सब के लिए जो जमा हुए तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी बहन मरियम के लिए जिसके तवस्सुत से खुदावंदा आज का ये प्रोग्राम अरेंज हुआ, पीस मिनिस्ट्री के लिए जिसने खुदावंद इस बेटी के साथ मिलकर इस खिदमत को सरअंजाम दिया है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अब जब हम जुदा होते हैं तो दोबारा मिलना तेरी मर्जी तेरे जलाल का सबब बने। ये सारी दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी और जिससे हमने तेरे पैसा को माफ़ किया है तो हमारे पैसे में माफ़ कर, हमें आज़माइश में रख बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमायत के साथ, खुदा के कुल मुकस्सीम के साथ, अपनी बहन सुनीता उनके ख़ानदान घराने के साथ और खुदा की कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। जो जाना चाहते हैं वो बेशक जाएं और जिन्होंने दुआ करानी है वो प्लीज़ करें।